تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتب کا مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، پچھلی قسط میں ہم نے حزقیل کی کتاب کا مطالعہ شروع کیا تھا، جو پرانے عہد نامے کی انبیاء اکبر میں سے ایک ہے، اور یہ کتاب اسرائیلیوں کے بابل کی اسیری کے حالات کو بیان کرتی ہے۔ حزقیل نے نبوت کی جبکہ وہ نہر کبار پر تھا، جو کسدیوں کے ملک میں دریائے فرات کے معاون ندی ہے۔ آسمان کھل گئے اور اس نے خدا کی رویائیں دیکھیں، اور آج خدا ان کے فضل سے ہم حزقیل کی کتاب کے پہلے باب کے پہلے حصے کا آغاز کریں گے۔ سو عزیزو، اپنی بائبل مقدس نکالیے اور آج کے مطالعے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلی مرتبہ اس عظیم کتاب کی تفسیر کو سن رہے ہوں، سو میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ اس مطالعے کو غور سے سنیں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں ضرور بھیجیے، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ شکریہ بھائی۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں ہم نے حزقیل کی کتاب کا تعارفی مطالعہ کیا، اور آج ہم پہلے باب کے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ میں پہلی چند آیات پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا جو اس کتاب کی پہلی 5 آیات سے متعلق ہوگا۔ 30ویں برس کے چوتھے مہینے کی 5ویں تاریخ کو یوں ہوا کہ جب میں نہر کبار کے کنارے اسیروں کے درمیان تھا تو آسمان کھل گیا اور میں نے خدا کی رویتیں دیکھیں۔ اس مہینے کی 5ویں تاریخ کو یہویاکین بادشاہ کی اسیری کے 5ویں برس میں خدا ان کا کلام بوزی کے بیٹے حزقیل کاہن پر، جو کسدیوں کے ملک میں نہر کبار کے کنارے پر تھا، نازل ہوا، اور وہاں خداوند کا ہاتھ اس پر تھا۔ اور میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ شمال سے آندھی اٹھی، ایک بڑی گھٹا اور لپٹی ہوئی آگ، اور اس کے گرد روشنی چمکتی تھی، اور اس کے بیچ سے یعنی اس آگ میں سے ثقیل کیے ہوئے پیتل کی سی صورت جلوہ گر ہوئی، اور اس میں سے 4 جانداروں کی ایک شبیہ نظر آئی، اور ان کی شکل یوں تھی کہ وہ انسان سے مشابہ تھے، اور ہر ایک کے 4 چہرے اور 4 پر تھے، اور ان کی ٹانگیں سیدھی تھیں، اور ان کے پاؤں کے تلوے بچھڑے کے پاؤں کے تلوے کی مانند تھے، اور وہ منجھے ہوئے پیتل کی مانند چھلکتے تھے، اور ان کی چاروں طرف پروں کے نیچے انسان کے ہاتھ تھے، اور چاروں کے چہرے اور پر یوں تھے کہ ان کے پر ایک دوسرے سے باہم پیوستہ تھے، اور وہ چلتے ہوئے مڑتے نہ تھے بلکہ سب سیدھے آگے بڑھے چلے جاتے تھے۔ ان کے چہروں کی مشابت یوں تھی کہ ان چاروں کا ایک ایک چہرہ انسان کا، ایک ایک شیر کا ان کی دہنی طرف، اور ان چاروں کا ایک ایک چہرہ سانڈ کا بائیں طرف، اور ان کا ایک ایک چہرہ عقاب کا تھا۔ بھائی یوسف، جب ہم پہلی آیت پر غور کرتے ہیں تو لکھا ہے 30ویں برس کے چوتھے مہینے کی 5ویں تاریخ کو یوں ہوا کہ جب میں نہر کبار کے کنارے پر اسیروں کے درمیان تھا۔ 30واں برس کس برس کو سمجھا جاتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ نبوت کے وقت کو جاننے کے لیے 30ویں برس کو کہاں سے گننا شروع کریں؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ ممکن ہے کہ یہ حزقیل نبی کی عمر کا 23واں برس ہو، اور اس وقت وہ 23 برس کا ہوا جس وقت میں کاہن اپنی خدمت کا آغاز کرتا ہے۔ لیکن اس وقت حزقیل یروشلم میں نہ تھا کہ اپنی کہانت کے کام کو سر انجام دے۔ وہ اسیروں کے درمیان تھا، اور خداوند نے اسے ایک مختلف خدمت کے لیے چنا، کہانت کے لیے نہیں بلکہ نبوت کی خدمت کے لیے، کیونکہ خدا کے کلام اور خدا کی آواز کو لوگوں تک پہنچانے کی اشد ضرورت تھی، اور پھر چاہے وہ بابل کے اسیر ہوں یا یروشلم یا یہودا کے رہنے والے ہوں۔ جی، اگر ہم اس تاریخ کی بات کریں جس کا تذکرہ دوسری آیت میں کیا گیا ہے، اس مہینے کی 5ویں تاریخ کو یہویاکین بادشاہ کی اسیری کے 5ویں برس میں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اسیری کے 5 برس بعد کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 593 قبل مسیح۔ تقریباً وقت کا ذکر کرنے کے بعد وہ اس نبوت کی جگہ کا تذکرہ کرتا ہے کہ نہر کبار کے کنارے، لہٰذا بابل میں یا کسدیوں کے ملک میں کسی نہر کبار کے متعلق نہیں سنتے۔ ہم جانتے ہیں کہ دجلہ اور فرات ملک عراق میں ہے۔ یہ دریائے فرات سے منسلک ایک ندی ہے، اور
یقیناً یہ لوگ اس وقت بے حد ذلت کی حالت میں تھے جب وہ بابل کے دریا کے کنارے پر تھے، جیسا کہ ہم زبور 137 میں پڑھتے ہیں۔ لیکن خدا کا شکر ہے کیونکہ نبوت کا اختتام ہمیشہ برکت پر ہوتا ہے، کیونکہ عدالت پیالے کو صاف کرتی ہے تاکہ اس میں برکت کو انڈیلا جا سکے۔ پر جب ہم حزقیل 47 پر پہنچتے ہیں تو ہم حیرت انگیز دریا پر خوبصورت منظر کو دیکھتے ہیں تسلی جو اور خوشی کا۔ تسلی کا اور خوشی کا دریا ہے، جس سے ہمیں روح القدس کی معموری اور خدا کی بے حد محبت کی یاد آتی ہے۔ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ہماری نبوتی کتب میں سے ایک کے مطالعے کے دوران خداوند کے روز کا، جس کی ہمیشہ ایک شام اور ایک صبح ہوتی ہے، یہاں تک کہ پیدائش پہلے باب سے ہی، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا، شام پہلے اور پھر صبح، پہلے عدالت پھر بحالی۔ ہمیں خدا کی عدالت کے کام اور بحالی کے متعلق کچھ بتائیے۔ خدا ہمیشہ عدالت کرتا ہے، لیکن خدا کا حتمی مقصد عدالت کرنا نہیں ہے۔ خدا نفرت سے بھرا ہوا نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں۔ خدا کو برکت دینا پسند ہے۔ وہ شریروں کی ہلاکت سے خوش نہیں ہوتا اور اسی لیے وہ عدالت کرتا ہے تاکہ انسان توبہ کرے، اور اگر انسان توبہ کرے تو خدا کے خزانے جو برکتوں سے بھرے ہیں ہمیشہ کھلے ہیں۔ اسی لیے مبارک ہے وہ جو موقع سے فائدہ اٹھاتا اور توبہ کرتا ہے تاکہ ابدی برکتوں سے محظوظ ہو۔ جبکہ وہ دنیاوی حصے کی بات کر چکا جب اس نے کہا کہ اسیر نہر کبار کے کنارے پر تھے، اس نے کہا کہ آسمان کھل گیا اور میں نے خدا کی روتیں دیکھیں، مطلب کہ آسمان کھل گیا۔ اس آیت میں جو کہا گیا سو آسمانوں کے کھلنے کے متعلق بیان کیجیے۔ بائبل مقدس میں ہم 7 مرتبہ پڑھتے ہیں کہ آسمان کھل گیا، اور بائبل میں ہمیشہ 7 کا عدد بہت اہم رہا ہے۔ یہ کاملیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور پرانے عہد نامے میں یہاں پہلی بار اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر دوبارہ مسیح کی زندگی میں ہوا ایک بار بپتسمے پر، متی 3 میں جب وہ بپتسمہ لینے کے بعد اوپر آیا تو آسمان کھل گیا۔ پھر یوحنا کے پہلے باب کی آخری آیت میں تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے۔ نتنیل کے ساتھ اس کی گفتگو بالکل، میں جو ابن آدم کے متعلق تھی، اور مسیح کی زندگی میں یہاں 2 مرتبہ اس کا ذکر ہوا، اور پھر 2 مرتبہ اعمال کی کتاب میں، ایک مرتبہ 7ویں باب میں جب استفنس کو سنسار کیا گیا تو اس نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا۔ پھر جو رویا پترس نے دیکھی اعمال 10 میں ہے، جی جب اس نے ایک چادر کو اترتے دیکھا اور پھر اسے آسمان پر دوبارہ اٹھا لیا گیا۔ یہاں تک 5 مرتبہ ہو گیا، اور پھر 2 بار مکاشفہ کی کتاب کے 4تھے باب میں، یہ اور 7 پھر مرتبہ مکاشفہ 19 میں۔ یہ کل 7 مرتبہ ہوا۔ میں پہلی اور دوسری مرتبہ آنے والے ذکر پر توجہ دلانا جی چاہوں گا۔ پہلا کہ آسمان ایک رویا میں کھلا، اور وہ منظر آندھی کا تھا۔ پر کیوں؟ کیونکہ خدا غضبناک تھا، کیونکہ لوگ شریر تھے، اور اسی لیے ہم یہاں پر ایک خوفناک منظر کے متعلق پڑھتے ہیں۔ آندھی ہے جو شمال سے اٹھ رہی ہے، گھٹا اور آگ ہے۔ اس کے برعکس ہم مرکز 1 میں، متی 3 میں اور لوکا 3 میں دیکھتے ہیں کہ جب آسمان کھلا اور روح القدس جسمانی شکل میں کبوتر کی مانند اترا، کیونکہ زمین پر ایک حیران کن منظر تھا اور خدا خوش تھا، جبکہ یہاں کے منظر میں خدا غضبناک ہے کیونکہ اس قوم نے بدی کی۔ لہٰذا انسان کی بدی کے باعث آسمان کھلتا اور آندھی اٹھتی ہے، یہ خدا کا قہر ہے۔ جی، لیکن مسیح کی اخلاقی کاملیت نے آسمان کو کھولا اور روح القدس اتر آیا، جو اس کامل شخص کی کاملیت کا ثبوت اور تصدیق تھی جو خداوند جی یسوع ہاں، مسیح ہے۔ صحیح۔ شکریہ بھائی یوسف۔ 4تھی آیت میں لکھا ہے، اور میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ شمال سے آندھی اٹھی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے واقعات پر آگے بڑھیں، وہ آندھی کی سمت کے متعلق بتاتا ہے کہ وہ شمال سے اٹھی۔ شمال سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ہم شمال میں 2 باتیں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات خدا کا تخت ہے، جیسا کہ ہم خدا کے کلام کے کچھ حصوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً یسایہ 14 میں ہے کہ شیطان نے اپنا تخت شمالی طرف میں جماعت کے پہاڑوں پر بنایا ہے، اور زبور 75 سے ہم یہ جانتے ہیں کہ عدالت نہ مشرق سے، نہ مغرب سے، نہ جنوب سے ہوتی ہے، لیکن اس نے شمال کا ذکر نہیں کیا کیونکہ خدا کا تخت شمال کی سمت میں ہے۔ اور ایوب 26:7 میں لکھا ہے، وہ شمال کو فضا میں پھیلاتا ہے اور زمین کو خلا میں لٹکاتا ہے۔ ہم ان آیات سے اور دوسری جگہوں سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا کا تخت شمال کی طرف ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا کا تخت کہاں ہے، لیکن شمال خدا کے تخت کو پیش کرتا ہے۔ صحیح۔ نہ صرف یہ بلکہ دوسری بات یہ ہے کہ عدالت اور غضب شمال کی طرف سے آتے ہیں، بلکہ یرمیہ کی کتاب میں واضح طور پر لکھا ہے، بہت بار شمال کو غضب کا منبع ظاہر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر یرمیہ کی کتاب کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ شمال کی طرف سے
इस मुल्क के तमाम बाशिंदों पर आफत आएगी और शुमाल का बादशाह मुस्तकबिल में चौथे बाब की छठी आयत, क्योंकि मैं बला और हलाकत शदीद को शुमाल की तरफ से लाता हूँ, और यही बात छठे बाब में भी दोहराई गई पहली आयत में लिखा है, क्योंकि शुमाल की तरफ से बला और बड़ी तबाही आने वाली है। सो मैं कहूँगा कि शुमाल दो बातों को पेश करता है कि खुदा का तख्त शुमाल में है और अदालत नबूकत नजर के वसीले की गई जो कौम के शुमाल में था। यहाँ शुमाल उस जरिए को पेश करता है जो शुमाल से आता है, कसदियों के मुल्क से, जिसे खुदा इस कौम की अदालत के लिए अपने इख्तियार से इस्तेमाल नबूकत करेगा। नजर। जब बाइबल मुकद्दस नबूवती कुतब में शुमाल और जनूब का जिक्र करती है, इसका मतलब मुल्क की शुमाली सिमत है, इसराइल के मुल्क की जनूबी सिमत। मेरा सवाल चौथी आयत से है। लिखा है, और मैंने नजर की तो क्या देखता हूँ कि शुमाल से आंधी उठी, एक बड़ी घटा और लिपटी हुई आग, और इसके गिर्द रोशनी चमकती थी, और उसके बीच से यानी उस आग में से सकील किए हुए पीतल की सी सूरत जलवागर हुई। अदालत के आने वाले वो कौन से जराए हैं जिन्हें आग और पीतल से तशबीह दी गई है? जी भाई यूसुफ। पीतल खुदा के कलाम में गुनाह के खिलाफ गजब को जाहिर करता है, इसलिए जहाँ कुर्बानगाह जिस पर कुर्बानी गुजरानी जाती है, दरअसल मैं कहूँगा कि वो खुदाम यीशु मसीह की सलीब को पेश करती है। और मैं कहना चाहूँगा कि दरअसल खुदा का गजब मसीह पर आया जब वो हमारी खातिर सलीब पर लटका हुआ था। यकीनन ये उसकी किसी बुराई की बाइस ना था, बल्कि ये उन बुराइयों के सबब से था जो हमने की। वो हमारा मुतबादल था। सो जहाँ कहीं हम बाइबल में पीतल के मुतालिक पढ़ते हैं, वो खुदा की पाकीज़गी और गुनाह पर उसके गजब को पेश करता है, और यकीनन आग खुदा की पाकीज़गी का वाज़े निशान है, और गुनाह के खिलाफ उसके गजब का भी, जैसे कि मिसाल के तौर पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि भस्म करने वाली आग, ये खुदा की पाकीज़गी है, क्योंकि खुदा पाक है और खुदा की आंखें ऐसी पाक हैं, वो गुनाह को देख नहीं सकता, वो आग से बदी की अदालत करेगा। सही, बहुत शुक्रिया। 5वीं आयत है, और इसमें से 4 जानदारों की एक शबी नजर आई, और उनकी शक्ल यूं थी कि वो इंसान से मुशाहबा थे, और हर एक के 4 चेहरे थे। ये 4 जानदार जो इंसान से मुशाहबा थे, वो क्या हैं भाई यूसुफ? इनके मुतालिक हमें बताइए। जी हाँ, अगर हम 10वें बाब की 15वीं और 20वीं आयत को पढ़ें तो कुछ वजाहतें मिल पाएंगी। 10वें बाब की 20वीं आयत में वो कहता है, ये वो जानदार है जो मैंने इसराइल के खुदा के नीचे नहर कबार के किनारे पर देखा था, जो कि पहले बाब में है, और मुझे मालूम था कि ये करूबी हैं। 15वीं आयत में है, और करूबी बुलंद हुए, और वो जानदार था जो मैंने नहर कबार में देखा था। इन 2 आयात से हम समझ सकते हैं कि वो 4 जानदार दरअसल करूबी हैं, और मैं कहूँगा कि ये करूबी दरअसल क्या होते हैं? वो अदालत के फरिश्ते हैं, और पहली बार जिन फरिश्तों के मुतालिक हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं वो करूबी हैं। पैदाइश के 3 बाब में हम सराफीम के मुतालिक पढ़ सकते हैं, मसलन यसाया 6 में, लेकिन सराफीम मदद के और फजल के फरिश्ते हैं, जबकि करूबी अदालत के फरिश्ते हैं जो गुनाह से भरे हुए इंसान को जिंदगी के दरख्त के पास आने से रोकते हैं, और वो इंसान को लहू की बुनियाद पर ही नजदीक आने देते हैं, जैसा कि हम पढ़ते हैं कि खैमा इज्तिमा में 2 करूबी हैं, सरपोश के दोनों जानिब बैठते हैं। सो करूबी अदालत के फरिश्ते हैं, और यहाँ पर भी हम 4 जानदारों को देखते हैं जो कि 4 करूबी हैं। वो 4 जानदार क्या हैं? दरअसल वो ज़राए हैं जिनको खुदा दुनिया में अदालत के लिए इस्तेमाल करता है, और ये मुस्तकबिल में फरिश्तों के जरिए ना होगी, बल्कि इब्रानियों 2 में लिखा है, उसने उस आने वाले जहान को जिसका जिक्र हम करते हैं फरिश्तों के ताबे नहीं किया। और फिर मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि अब खुदा फरिश्तों को अदालत के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन मुस्तकबिल में वो अपने लोगों को, जो कलीसिया है, इस्तेमाल करेगा, जिनके ताबे वो आने वाली दुनिया को करेगा, और इब्ने आदम उनका सरदार होगा, जैसे कि इब्रानियों 2 में लिखा है। लिहाजा भाई यूसुफ, हम कह सकते हैं कि 4 जानदार फरिश्तों को पेश करते हैं जो कि अदालत के काम के लिए मखसूस किए गए हैं। वो खुदावन के पैगंबर हैं ताकि वो अदालत का काम पूरा करे। जी हाँ, वो उनके मुतालिक कहता है वो इंसान से मुशाहबा थे, और हर एक के 4 चेहरे और 4 पर थे। हमें इन अल्फाज के मुतालिक कुछ बताइए भाई यूसुफ। परों और चेहरों और सीधी टांगों के मुतालिक
हम इन बातों के मुतल्लिक जानना चाहेंगे। चलें आए हम 10वीं आयत के चेहरों से शुरू करते हैं। उनके चेहरों की मुशाहबत यूं थी कि एक एक चेहरा इंसान का, एक एक चेहरा शेर बब्बर का, एक एक चेहरा सांड का, और उनका एक चेहरा ओकाब का था। इन चारों में हम खुदा की हिकमत में उनकी सिफात को देखते हैं। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि बहुत पहले से मुबस्सिरीन इन चार चेहरों में चार अनाजील के मुत्तल्लिक मसीह के अक्स को देखते हैं, जो कि इन चारों अनाजील में मिलता है। जी। सो बब्बर हमें मत्ती की अंजील की याद दिलाता है, मसीह बादशाह है। सांड या बछड़ा हमें मरकज की अंजील की याद दिलाता है। इससे हमें पता चलता है कि मुशक्कत करने मसीह वाला। दरअसल खादिम है, मुशक्कत करने वाला। और इंसान हमें लूका की इंजील की याद दिलाता है, जो मसीह की इंसानियत की बात करती है। मसीह उकाब है, जो मसीह को यूहन्ना की अंजील के मुताबिक पेश जो करता आसमानी है, है। जो आसमानी है। सो ये चारों सूरतें दरअसल चारों अनाजील के मुताबिक हैं। और मुकाशफा की किताब के चौथे बाब में हम यही चार सूरतें जरा मुख्तलिफ तौर पर देखते हैं। तो फिर फर्क क्या है? यहाँ पर उसने शुरुआत इंसान के चेहरे से की, जबकि मुकाशफा में वो बब्बर से शुरू करता है। और जब खुदा शरीर की दुनिया का हिसाब करेगा तो उसका चेहरा बब्बर का होगा, जो यहूदा के कबीले का बब्बर है, जो जमीन को बुरी तरह हिला देगा। जबकि वो लोग अपने से मामलात करते हैं, जैसा इंसान। कि हम पढ़ते हैं, तब उसका चेहरा इंसान का है, क्योंकि खुदावंद अपनी कौम की अदालत करेगा और अपने बंदों पर तरस खाएगा। और इसीलिए हिजकील 1 में वो बब्बर से नहीं बल्कि इंसान से शुरू करता है। लेकिन जब वो शरीरों की दुनिया का हिसाब करता है तो वो बब्बर शेर से शुरू करता है। और मैं कहूँगा कि यही चार चेहरों की बात है। सो खुदावंद का बड़ी मुसीबत के आखिर में जलाल और कुदरत के साथ यहूदा के कबीले के बब्बर के तौर पर जाहिर होना, शरीरों से इंतकाम लेने के लिए और दुख उठाए अपने लोगों की निजात के लिए। सो बिल्कुल। वो बब्बर के रूप में शरीरों को हलाक करेगा और उस बड़ी मुसीबत में दुख उठाने वाले अपने लोगों को बचाएगा। ये वही तरतीब है जो हम अनाजील में देखते हैं। सही। पहले बब्बर, फिर एक सांड या बछड़ा, फिर इंसान, और फिर आखिर में औकाब। जी। ये चार चेहरों के मुतल्लिक है। और वो ये भी कहता है कि परों के नीचे इंसान के हाथ थे। और मैं कहूँगा कि उसके पर इसलिए हैं क्योंकि वो आसमानी हदायत पर अमल करता है, और हाथ इसलिए हैं क्योंकि वो दुनिया के साथ मामलात करता है। 8वीं आयत में लिखा है, परों के नीचे इंसान के हाथ थे, इंसान के हाथ, क्योंकि वो दुनिया के साथ मामलात करते हैं। और पर इसलिए क्योंकि वो आसमानी हदायत पर आसमान की अमल अदालत करते में। हैं। सही। जी, बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ। अब हम मेहमानों से उनका सवाल जानेंगे। सवाल 7वीं आयत से है, और उनकी टांगें सीधी थीं और उनके पाँव के तलवे बछड़े के पाँव के तलवे की मानंद थे, और वो मंझे हुए पीतल की मानंद छलकते थे। टांगें सीधी थी और बछड़े के पाँव की मानंद होने से क्या मुराद है? हमें 7वीं आयत से अदालत के इन अमाल की सिफात के मुतल्लिक बताइए भाई यूसुफ। जी, वो कहता है कि उनकी टांगें सीधी थीं और उनके पाँव के तलवे बछड़ों के पाँव के तलवों की मानंद थे, और बछड़ों के अंदर सब्र की सिफ्त पाई जाती है। और सीधी टांगें ये जाहिर करती हैं, और इसीलिए एक अंग्रेजी में कहावत है कि स्लोली बट श्योरली, यानी कि खुदावंद आहिस्ता से चलता है लेकिन वो साबित कदम है। और जब वो आता है तो अपनी अदालत को अमल में लाता है, लेकिन वो जल्दबाजी के साथ अदालत के काम को सरंजाम नहीं देता। और बहुत खूबसूरत बात यहाँ लिखी है कि उनके पाँव के तलवे बछड़ों के पाँव के तलवों की मानंद थे, जो साबित कदमी को जाहिर करते हैं, लेकिन वो पाँव सीधे थे। सो जब वक्त आएगा वो रहम के बिना अदालत करेगा। पर समझदार शख्स वही है जो खुदा के सब्र से फायदा उठाता और जल्द तौबा करता है। ठीक है, पिछले वक्तों में बछड़े या बैल को हल चलाने या गंदम पीसने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। गोया वो कहना चाहता है कि अदालत के पहिए आहिस्ता आहिस्ता घूमना शुरू करेंगे। जिस तरह एक बछड़ा चक्की को आहिस्ता आहिस्ता हरकत देता है, आहिस्तगी से हल चलाता है। जी, ये अदालत में खुदा की सिफात हैं। सही। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई खुदा को यूसुफ। बरकत दे। इसके हर हिस्से को तफसीली मुताला दरकार है। हमारे सामने एक बहुत ही कीमती किताब है जिसकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। खुदावंद हमारी मदद करे कि हम आमीन। नाज़रीन के आगे इस किताब में पिन्हा खजानों को जाहिर कर सकें। आइए मेहमानों से उनकी राय जानें। आप तैयार हैं? आप में से कोई हमें बताए कि नबूवत की जगह क्या है, और पहले बाब की पहली आयत के मुताबिक। जी, कौन बताएगा? जहाँ तक वक्त की बात है तो हमने जाना कि हिजकील की उम्र उस वक्त 30 बरस थी, जिस उम्र में काहिन अपनी खिदमत का आगाज करता है। पर हिजकील उस वक्त यरूशलेम में ना था कि वो अपनी कहानत के काम को सरंजाम दे सके। वो असीरों के दरमियान था और खुदावन ने उसे नबूवत की खिदमत के लिए चुन लिया।
हिजकिय्याल 30 बरस का था। जी, कौन सी वो जगह पर? 30 बरस का था। नहर की बार जो दरियाए फरात से मुंसलिक एक नदी है। जी, ये भी जिक्र किया गया कि आसमान खुल गया बाइबल मुकद्दस में, और कहाँ-कहाँ आसमान खुल जाने का जिक्र मौजूद है? पहली मर्तबा यहाँ इस बाब में है, फिर मती 3 बाब में यीशु मसीह के बपतिस्मे के वक्त, और यूहन्ना 1 में जब उसने कहा तुम आसमान को खुला हुआ देखोगे, फिर अमाल की किताब के 7वें बाब में जब स्तिफनुस को संसार किया गया, और 10वें बाब में पतरस ने जो रोया देखी, और फिर मुकाशवा की किताब में 4 और 19वें बाब में 4 और 19। सही। ठीक है, शुक्रिया। उन मखलूकात के चेहरों में क्या क्या मुशाहबतें और फ़र्क है जिन्हें हिजकिय्याल पहले बाब में देखता है और जिनका जिक्र मुकाशवा के 4 बाब में किया गया है? जी, कौन बताएगा? दोनों रयाओं में उनके 4 चेहरे हैं। यहाँ उसने इंसान के चेहरे की शुरुआत की। जी, उसने शुरुआत इंसान की सूरत से की, लेकिन मुकाशवा की किताब में उसने शुरुआत बब्बर की सूरत से की, क्योंकि खुदावंद मुस्तकबिल में लोगों की शरारत का बदला बब्बर के रूप में लेगा, लेकिन अपने लोगों से वो इंसान के रूप में बात करता है। सही भाई यूसुफ। सही। ठीक है, आप सबका शुक्रिया। भाई यूसुफ, खुदा आपका भी आपको शुक्रिया। बरकत दे। अजीज नाजरीन, जैसा कि हमने आज की किस्त में सीखा कि ये अदालत का मंजर है, क्योंकि वो लोग अपनी शरारत के सबब से असीरी में थे। उन्होंने खुदा की पाकीज़गी का लिहाज या एहतराम ना किया, सो उन्हें मुल्क से निकाल लाया और वो असीरी में चले गए। खुदा बदकारी और गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता। गो वो अपने लोगों से मोहब्बत करता है पर बदी से नफरत करता है। सो वो लोग अपनी बदी के बायस असीरी में चले गए। लेकिन जबकि खुदावंद अपने लोगों पर काम कर रहा है, खुदा इंसान के मुशाबा होकर काम करता है, तमाम मेहरबानी और शफकत के साथ। लेकिन जब वो दुनिया के गुनाहगारों के साथ मामलात करेगा, दुनिया के शरीरों के साथ आखिर ज़माने में जब वो बड़ी मुसीबत में होगी, तब वो जलाल और कुदरत के साथ जाहिर होगा। वो यहूदा के कबीले के बब्बर के तौर पर जाहिर होगा। मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी में अब खुदा उनके काम को कबूल नहीं करते, जब वो इस दुनिया में इंसानी सूरत में आया और एक कामिल शख्स के तौर पर जिया और इब्ने आदम होते हुए सलीब पर मर गया, एक दिन वो यहूदा के कबीले का बब्बर जाहिर होगा। हम फजल के दौर में है जो इख्तिताम पजीर होने को है। मसीह को आज कबूल करें ताकि आपको उसकी अदालत का सामना ना करना पड़े। आने वाली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे।